حضوری پارک میں جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا اور بلدیہ عظمیٰ لاہور کی جانب سے حضوری پارک میں جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شاہی قلعہ پر پرچم کشائی کی۔ سلسلے میں آج یوم آزادی کے دن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آج اگر کھلی ہوا میں اور میری قوم سانس لے رہی ہے اور ہم آج پاکستان کا جھنڈا لہرا رہے ہیں، تو اس میں ان شہیدوں، ان غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان شہیدوں کو کہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا خون دیا، اور ان ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تمام ایجنسیز، پولیس، فوج، رینجر، آرمی، ASF، تمام فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پنجاب میں پوری قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کھلی فضا میں ہم قومی پرچم لہرا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا، ان سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کی مائیں اپنے بچوں کو سرحدوں پر بھیجتی ہیں۔ پاکستان کی آزادی انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی۔ لاہور رنگ کی جانب سے اہل وطن کو 77واں یوم آزادی مبارک۔ 12 بجتے ہی فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ گریٹر اقبال پارک میں شاندار آتش بازی، آسمان رنگ و نور سے جگمگا اٹھا۔ CBD، کلمہ چوک سمیت شہر کے مختلف مقامات پر فائر ورک، شہریوں کی بڑی تعداد آتش بازی سے محظوظ ہوئی۔ شہر میں ہر سو آزادی کی مہک، شہر کی اہم شاہراہیں اور عمارتیں سبز و سفید روشنیوں میں جگمگا اٹھیں۔ اہل لاہور اپنے روایتی جوش و جذبے سے جشن آزادی منانے کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ دلکش اور دل موہ لینے والے مناظر دیکھ کر شہری خوشی سے نہال، بچے بڑے سبھی وطن کی محبت سے سرشار، خوب ہلا گلا کر کے خوشیوں کو دوبالا کیا۔ میں پاکستان ہوں، میں زندہ باد ہوں۔ آزادی فلیوٹ مینار پاکستان پہنچ گیا۔ زندہ دالان لاہور نے آزادی فلیوٹ کا فقید المثال استقبال کیا۔ آزادی فلیوٹ میں تمام صوبوں کے رنگ نمایاں۔ جشن آزادی کی مناسبت سے مینار پاکستان پر آزادی مشاعرہ، میوزیکل نائٹ میں معروف گلوکاروں نے اپنی آواز کا جب جگایا۔ آزادی کا دن بہت بڑا ہوتا ہے، آزادی کا مطلب فلسطینیوں اور کشمیریوں سے پوچھیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں، ملک کو بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ پاکستان کے مقدر میں ترقی اور خوشحالی ہے، اگلا جشن آزادی مزید اچھا ہوگا۔ پوری قوم بالخصوص اساتذہ اور طلباء کو آزادی کا دن مبارک ہو۔ چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا، آج پاکستان میں 260 سے زائد یونیورسٹیز موجود ہیں، مزید یونیورسٹیز بنانے کی ضرورت ہے، تاہم اپنی یوتھ کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعلیم کی رسائی فراہم کریں۔ بات دیتا ہوں تمام پاکستانیوں کو، خصوصاً طلباء کو، اساتذہ کو، پاکستان کے 77th جو پاکستان کی برتھ ڈے ہے، جو اس کا یوم آزادی ہے، اس کے اوپر پاکستان کے 77ویں یوم آزادی پر یہ تہیہ کریں کہ ہم لوگ ایک ہیں۔ اولمپکس، پوری قوم بالخصوص اساتذہ اور طلباء کو آزادی کا دن مبارک ہو۔ چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا، آج پاکستان میں 260 سے زائد یونیورسٹیز موجود ہیں، مزید یونیورسٹیز بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی 77ویں یوم آزادی کے موقع پر میں اپنی پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی اس دن ایک قوم بن کر اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم ایک ہیں۔ پاکستان کے 77ویں یوم آزادی پر یہ تہیہ کریں کہ ہم لوگ ایک ہیں۔ اولمپک جیولن تھرور ارشد ندیم کہتے ہیں، اولمپکس میں گولڈ جیتنے پر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں میں خوشی کی لہر دیکھی گئی۔ میں 14 اگست کے لیے اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی تصویر بدل کر یکجہتی کا پیغام دے رہا ہوں۔ آج 14 اگست کا دن ہے، آج یوم آزادی کا دن ہے، اور ہم بہت خوش ہیں کیونکہ اس دن پاکستان وجود میں آیا، اور پاکستان ایسی وجود میں نہیں آیا، لیکن پاکستان ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، ہماری ماؤں، بچوں کی اور بہنوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ فاؤنڈر ہیں ہمارے ملک کے، انہوں نے جو پرنسپلز 3 سیٹ کیے ہیں، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن،
इन पर अमल करें। पाकिस्तान बुजुर्गों, माओ, बहनों और बच्चों की लाजवाल कुर्बानियों के बाद कायम हुआ। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का यौम आज़ादी के मौके पर खसूसी पैगाम। कहा, आज के दिन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, हमें मुआशरे में बर्दाश्त और तहम्मुल को फ़रोग़ देना होगा। मजदूर भी जश्न आज़ादी की तकरीबात में पेश। अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने मजदूरों के साथ केक काटा। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अहमद सलमान बलोच ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में हर फर्द का हिस्सा है। यौम आज़ादी पर अमन अमान के लिए लाहौर पुलिस मुतहरिक। शहर में 10,000 से ज़ायद अफसरान व एहलकार ड्यूटी पर तैनात। तमाम सरगर्मियों की कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। IG पंजाब की CCPO लाहौर को इंतज़ामात की खुद निगरानी करने की हिदायत। यौम आज़ादी पर व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी और हवाई फायरिंग करने वाले हो जाएं होशियार। साइलेंसर निकलवाने और निकालने वाले दोनों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। खातून और फैमिलीज को खुसूसी तोहफा दिया जाएगा। CTO अमाराथर के मुताबिक 2400 से ज़ायद ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी पर तैनात। तमाम पार्क्स में इजाफी नफरी अलर्ट रहेगी। सेलिब्रेशन के लिए सारे बिल्कुल चाहते हैं कि लोग सेलिब्रेट करें, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि इस तरह के जो यंगस्टर्स हैं हमारे, वो ग्रुप्स बना के एक गैंग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और वो जो गैंग होता है वो लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम का बाइस बनता है। हरासमेंट होती है, उसके अंदर नारेबाजी होती है, ट्रैफिक को वो रोकते हैं, गलत ट्रैफिक चलाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक रोड्स पे सेफ्टी नहीं रहती है। सुपीरियर कॉलेज मनावा कैंपस में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब। 77वें यौम आज़ादी की मुनासबत से केक काटा गया। चेयरमैन मनावा कैंपस हाजी मुश्ताक हुसैन, डायरेक्टर शाहिद अंजुम और डायरेक्टर फैसल अंजुम समेत कॉलेज इंतज़ामिया और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आज़ादी के रंग, लाहौर रंग के संग, हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार। छोटी दुनिया भी मिली जोशो जज्बे से सरशार। बच्चों का पाक धरती से चाहत का खूबसूरत अंदाज। वतन से मोहब्बत में नन्हे बच्चे पी पेश पेश, परचम थामे, बैजेस लगाए। बच्चों ने नित नए अंदाज अपनाए, आज़ादी की खुशियाँ मनाएं, परचम लहराएं, तस्वीरें बनवाएं और हमें भेजें। नंबर आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज आज़ादी रैली निकालने का ऐलान। अरकान पंजाब असम्बली आज आज़ादी रैली में शिरकत करेंगे। रैली पंजाब असम्बली ड्यूटी फ्री गेट से शुरू होकर मॉल रोड पर इख्तिताम पजीर होगी। रैली आज दोपहर 2 बजे निकाली जाएगी। लाहौर, कसूर, गुजरांवाला के अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। टिक्का खान ग्रुप की जानिब से जश्न आज़ादी तकरीब का इनेकाद। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कहा, अरशद नदीम ने 14 अगस्त का बेहतरीन तोहफा दिया। आज़ादी का मतलब कोई बर्मा और फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछे। तकरीब में मोहम्मद मनीर टिक्का, मलिक सज्जाद, नसीरुद्दीन और शहजाद मालिक भी शरीक हुए। अंजुमन ताजरान इलेक्ट्रॉनिक्स हाल रोड के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी तकरीब। सदर अंजुमन ताजरान इलेक्ट्रॉनिक्स हाल रोड, सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान इलेक्ट्रॉनिक्स आमिर खान की ख़ुसूसी शिरकत। 77वें यौम आज़ादी की मुनासबत से 100 पाउंड का केक काटा गया। ताजर बरादरी भी जश्न आज़ादी के रंगों में रंग गई। अंजुमन ताजरान कायदे आज़म ग्रुप ने 200 पाउंड वजनी केक काटा। तकरीब में सदर अंजुमन ताजरान कायदे आज़म ग्रुप मलिक अमानत अली, सीनियर नायब सदर नासिर अहमद अंसारी और ज़की इम्तियाज़ समेत शहर की मुख्तलिफ मार्केट के सदूर और ताजिर रहनुमा शरीक हुए। सतहत्तरवां यौम आज़ादी मोबाइल फ़ोन एसेसरीज एसोसिएशन हाल रोड की जानिब से केक काटने की तकरीब। सदर डॉक्टर शहजाद महमूद,
वाइस चेयरमैन कैसर बिलाल भट्ट, जनरल सेक्रेटरी सुहेल परवेज ने ताजिरों के हमरा जश्न आज़ादी का केक काटा और मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की। यौम आज़ादी पर हुकूमत का महंगाई से सताई अवाम को तोहफा। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 47 पैसे कमी, नई कीमत 260 रुपये 96 पैसे मुकर्रर कर दी। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 70 पैसे फी लीटर सस्ता, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब की कौमी हीरो अरशद नदीम के घर आमद। मरियम नवाज की ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट से मुलाकात। शानदार कामयाबी पर 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी दी। अरशद नदीम को मेडल भी पहनाया। मरियम नवाज ने कौमी एथलीट के अहले खाना से मुलाकात में बेटे की कामयाबी की मुबारकबाद दी। पंजाब हुकूमत का फख्र पाकिस्तान, अरशद नदीम को कार का तोहफा। अरशद नदीम को तोहफे में दी गई गाड़ी का नंबर 9297 होगा। ये वो नंबर है जिसने ओलंपिक्स में अरशद को गोल्ड मेडल का हकदार बनाया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर तवील फासले पर नेज़ा फेंका था। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को दी गई गाड़ी की नंबर प्लेट मशकूक। ज़राए के मुताबिक एक्साइज में 92.97 नंबर की गाड़ी का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। पंजाब हुकूमत से मनपसंद नंबर प्लेट्स की ताहाल मंजूरी ना हो सकी। डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ कहते हैं गाड़ी की नंबर प्लेट महकमा एक्साइज ने नहीं बनाई। बहुत ही ज़बरदस्त। मैं पाकिस्तानी आवाम को, सब लोगों को जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें हमारे लिए तालियां बजाई, हमारे लिए जज्बात ज़ाहिर किए, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला की जानिब से अरशद नदीम के कोच को 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। कोच सलमान भट्ट की लाहौर रंग से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। शानदार इस्तकबाल पर कौम का शुक्रिया अदा करते हैं। अब बहुत से लोग इस खेल की तरफ आएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अपना घर अपनी छत के मॉडल घर मंसूबे की मंजूरी दी गई। शहर में 5 मरले और देहात में 10 मरले तक प्लॉट पर घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए मिलेंगे। दिसंबर तक पंजाब में इलेक्ट्रो बस चलेगी। मरियम नवाज ने कहा आइंदा 2 माह में आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं। इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए अपना किरदार अदा करें। इस्लाम एक मुकम्मल दीन और ज़ाब्ता हयात है। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद अल बदीर का उलमाए कन्वेंशन का खिताब। कहा इस्लाम अमन व सलामती का दर्स देता है। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अब्दुल बदीर का मरकजी जमीयत अहले हदीस के हेडक्वार्टर का दौरा। सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अब्दुल बदीर ने कहा उलमा मुसलमानों को किताब व सुन्नत पर मुत्तहिद करें। अल्लाह की तरफ दावत देते वक्त नरमी और हिकमत इख्तियार करनी चाहिए। लाहौर समेत मुल्क भर में कुरान पाक की एक ही कॉपी छापी और फरोख्त की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने वफाकी वजारत मजहबी उमूर के फैसले की तौसीक कर दी। सेक्रेटरी औकाफ ने सूबाई काबीना को नोटिफिकेशन जारी करने की दरख्वास्त की थी। हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का फैसला। पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। पासपोर्ट की फीस किसी भी नेशनल बैंक में जमा करवाई जा सकेगी। तरमीम के बाद पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड की तर्ज पर बनेगा। रूल्स में तरमीम की मंजूरी काबीना देगी। पंजाब हुकूमत का बेसहारा खातून के लिए बड़ा रिलीफ। तलाक याफ्ता बेवा खातून को गुजर बसर के लिए जानवर मिलेंगे। पंजाब के 12 अजला में खातून को गाय और भैंस बिला मुआवजा फराहम की जाएंगी। 47 तहसीलों की बेवा खातून भी मुस्तफीद होंगी।
शहर में आलमी मयार की मछली मंडी बनेगी। रिंग रोड से 3 किलोमीटर के फासले पर काहना काछा में 9 अरब 28 करोड़ रुपए की लागत से मंडी बनेगी। जून 2025 में मुकम्मल होने वाली मंडी में ताजरों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी।